Morning everybody. Today we are going to start our very interesting chapter, and that's the first chapter of our Vistas, the third level by Jack Feeney. The Grand Central Station of New York has two levels, but Charlie, the 31-year-old protagonist of the story, a city dweller, declares that there are three claims to have been there as well. So, the theme of the story is the third level clearly explores the science fiction genre of time travel. Jack Feeney, the recipient of the World Fantasy Award, interweaves fantasy with reality in his projection of time travel. So, this story, third level, basically is about time travel and space travel. जो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है चार्ली द प्रोटैगनिस्ट, उसको जो है एस्केप करना होता है अपनी रियल लाइफ से, और वो उस रियलिटी से एस्केप करने के लिए एक अनदर लेवल पे पहुंच जाता है, दैट इज़ द थर्ड लेवल. एंड दिस स्टोरी हाईलाइट्स time travel and space travel. Charlie, the protagonist, wishes to be transported to the third level, the world of Galesburg, Illinois, 1894, which is supposed to be a much happier and quieter place to be in. The story also dwells on the theme of escapism. Escapism as a psychological refuge from the grim realities of the present day world, along with a desire to stay with the past, a desire that Charlie's wife Louisa does not contest. Sam has also happily escaped with no desire to return to his old profession. So, here escapism, we all want to escape from our real life, all those trials and tribulations and tough time we are going through. हम उन सब चीज़ों से escape चाहते हैं. ये हमारा psychology है कि we don't like tough situations and situations in which we are not happy. So, this story highlights about escapism. Psychological refuge है, आपको psychologically अपनी इन सब भाग दौड़ की दुनिया से जो है एक रिफ्यूज चाहिए, एक एस्केप चाहिए. तो ये स्टोरी उसको हाईलाइट करती है. अ डिज़ायर दैट चार्लीज वाइफ लुइसा डज नॉट कॉन्टेस्ट, वो चार्ली का ही अपना एक एम है कि वो एस्केप करना चाहता है. सैम हैज़ ऑल्सो हैप्पीली एस्केप्ड with no desire to return to his old profession. और सैम जो कि साइकेट्रिस्ट है चार्ली का, वो भी एस्केप करके अपने ओल्ड प्रोफेशन में वापस नहीं आना चाहता, और वो भी गेल्सबर्ग पहुंच जाता है अकॉर्डिंग टू चार्लीज time travel and space travel story. The story exposes the vulnerable side of the common man, surrounded by myriad problems. We humans sometimes experience a craving for peace and serenity and look for possible escapes. This story is about time intersection and illusion, a kind of long dream that we do not experience during आवर स्लीप. और ये स्टोरी जो है वो ह्यूमन बींग्स का एक सॉफ्ट कॉर्नर है. लाइक हम सब जो है प्रॉब्लम्स से सराउंडेड हैं. वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एंड वी समटाइम्स क्रेव, हमें कई बारी इच्छा होती है कि हम पीस में जाएं, सीरीन एनवायरनमेंट में जाएं और एस्केप करें अपनी इन सब प्रॉब्लम से. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टाइम इंटरसेक्शन एंड इल्यूजन. ये स्टोरी इन टाइम इंटरसेक्शन की बात कर रही है क्योंकि वो 20th सेंचुरी में है चार्ली, बट वो ट्रैवल करके जो है किसी और सेंचुरी में पहुंच जाता है. एंड इल्यूजन, अ काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रीम, एक इल्यूजन था उसको कि वो एक थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, और एक बड़ा ड्रीम जो कि हम जागते हुए देख रहे हैं. तो वो चीज़ जो है वो चार्ली ने फेस की अपनी रियल लाइफ में. अगर हम करेक्टर्स की बात करें, चार्ली द मेन करेक्टर, चार्ली इज़ 31 year old man in a tan gabardine suit and a straw hat. One night on his way back from home, he decides to take the subway at the Grand Central Station, which, as everyone knows, has two levels. Preoccupied and in a hurry, Charlie discovers an unknown exit that takes him through a long corridor into the third level. अगर हम सैम की बात करें तो सैम विनियर इज़ अ चार्लीज फ्रेंड एंड अ साइकेट्रिस्ट एंड द नेक्स्ट most important character in the story. He concludes that the third level is
figment of Charlie's imagination induced by the pressures of modern living. और अगर हम थर्ड करेक्टर की बात करें तो लुइसा, Charlie's wife. Louisa was initially angry with Sam's suggestion that Charlie was unhappy when Charlie tells him about his sojourn to the third level of the Grand Central Station in New York. Then Sam explains that it is not marital unhappiness but dissatisfaction and discontent with modern day living with its insecurity, fear, war and worry. सैम एक्सप्लेन करता है लुइसा को कि ये सब जो एस्केपिज़म की बात कर रहा है या थर्ड लेवल की बात कर रहा है वो शादी से नाखुश होकर नहीं, जो मॉडर्न लाइफ में हमारे को इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरी है उसको एस्केप करना चाहता है चार्ली. To escape from these pressures, Charlie's mind had sought refuge in the idyllic world of the third level. Louisa's conviction in the existence of the third level is affirmed only when she sees the note sent by Sam himself from Galesburg, Illinois, dated July 1894. And since then, Louisa has been actively involved in looking for the third level along with her husband Charlie. अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के ऑथर की. अबाउट द ऑथर, द थर्ड लेवल इज़ नेम्ड फॉर अ शॉर्ट स्टोरी बाय जैक फिनी. 1911 to 1995 डेट ऑफ बर्थ है, विच अपीयर्ड इन 1957 कलेक्शन ऑफ द सेम नेम. इन द स्टोरी द disenfranchised protagonist discovers a third level to the Grand Central Station from which he takes a train back in the time of the year 1894. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें स्टोरी की तो द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर. वॉर हैज़ irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity, and it is also about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. In this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. ये स्टोरी जो है वो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के ऊपर, इनसिक्योरिटी के ऊपर, वॉर की वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन है, लैक ऑफ पीस है, उसको एस्केप करना चाहता है. और चार्ली जो है वो ऐसा हेल्यूसिनेट करता है, उसे ऐसा इमेजिनेशन होता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल्स हैं. द 31-year-old Charlie worked at an office in New York, and one night he got late due to work. Eager to return home quickly, he decided to board a train at Grand Central Station. Initially walking down the steps after turning into Grand Central from Vanderbilt Avenue, he passed through an arcade doorway at the second level and passed the place where people boarded the trains are suburban areas and got lost. And while events of getting lost had happened to him previously, the incident this time was unique as he had visited the proverbially non-existent third level. Although वो बार बार अलग अलग लेवल्स पे पहुंच जाता था, अलग अलग डायरेक्शंस में निकलता था, बट इस बार जो है चार्ली जो है एक अदर लेवल पे ही पहुंच गया, दैट इज़ द थर्ड लेवल. The Grand Central of 1894 looked old and antique with noticeable structural differences at both the levels, and the small room consisted of a wooden information booth, flickering open flame gas lights and brass pitons. There were fewer ticket counters and the people wore backdated dresses. The entire architecture was presumed by Charlie to be of the 1800s. And the third level acts as an escape portal from the present world, which is full of worrisome conditions, stress situations, insecurity, war and fear, and it was never built at the Grand Central Station, New York. It is set a mock serious tone as the author Jack Finney effortlessly blends between the present and the past. We infer from the एंडिंग दैट द विशफुल इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. और अब अगर हम बात करें चार्ली के थर्ड लेवल की, तो वो थर्ड लेवल जो है बहुत ही पुराना दिखता है और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं उस थर्ड लेवल पे.
उसका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है सेकेंड लेवल से, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ है, ओल्ड टाइप ऑफ फ्लिकरिंग गैस लाइट्स हैं, फ्यूअर टिकट काउंटर्स हैं, बैकडेटेड ड्रेसेस हैं, लोगों ने जिस तरीके की ड्रेसेस पहनी हुई हैं वो पुराने ज़माने के लोग ही पहनते थे। 1800 में जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस था वो ईज़िली चार्ली देख पा रहा था उस लेवल पे। द थर्ड लेवल एक्ट एज एन एस्केप, और उसके लिए वो एस्केप की तरह काम कर रहा था दैट लेवल फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड, आजकल के वर्ल्ड जो जिसमें वरीसम है, कंडीशंस काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं, इनसिक्योरिटी है, वॉर है, फियर है, तो इस सब चीज़ों से वो एस्केप चाह रहा था। एंड इट वॉज नेवर बिल्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। इट इज़ सेट इन अ मॉक सीरियस टोन as the author Jack Finney effortlessly blends between the present and the past. We infer from the ending that the wishful imagination of a Charlie. The protagonist was vivid and he wanted to escape from the present world. Sam Vinier, his psychiatrist, termed it as a waking dream wish fulfillment. This is a really important word, waking dream wish fulfillment. वो जागते हुए सपना देखने की बात कर रहे हैं, तो कई बार हम इतना स्ट्रॉन्ग सपना देखते हैं कि उसे हम जीना ही शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी है वही चीज़ हाईलाइट करती है कि चार्ली को जो है एस्केप चाहिए था, और वो उस सपने को जो है वो उसने एक्चुअली में जीना शुरू कर दिया। हेल्यूसिनेट हो रही थी ये सारी इमेजिनेशंस उसे। सो चार्ली वॉज कीन टू मीट हिज वाइफ एंड टेक हर फॉर अ ट्रिप टू his Galesburg, Illinois, and it was the place where his grandfather lived. He also had a letter in his collection which was addressed to him. However, the postal address was the place where his grandfather lived. The letter was dated July 18th, 1894 and was sent by Sam. While one can assume the letter to be absolute proof of the fact that Sam was in Galesburg in 1894, and there also exists an possibility that the letter was just Charlie's hallucination or wish to escape from the modern world. और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे मतलब उसने इमेजिन करी जैसे सब कुछ सचमुच में हो रहा है। पोस्टल एड्रेस की बात करें, स्टैम्प की बात करें, सैम की गेल्सबर्ग पहुँच जाने की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे इंटरप्रेट हो रही थी जैसे कि ये सब सच में हो रहा है। Worried about his situation, his wife Louisa advises him not to search for the third level anymore during the weekends. They searched for Sam, who was nowhere found. और वो सैम को ढूंढ रहे थे और उसकी वाइफ ने उसको डिस्करेज किया कि तुम अब थर्ड लेवल के बारे में सोचना छोड़ दो, उसको ढूंढना बंद कर दो. द स्टोरी टचेस अपॉन द थीम ऑफ द एक्सेप्टेंस. देयर might be unpleasant incidents happening in the life of a person according to Charlie, and the world in 1894 was much more peaceful and calm than his present world, which is full of hardships and challenges. He wishes to live with his wife in a world that has not seen the devastating effects of war. और वो उस दुनिया में जीना चाह रहा था जहाँ पर पीस हो और कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो, और वो अपनी वाइफ के साथ उस जगह पर जाना चाह रहा था. अगर हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट डज़ द थर्ड लेवल रेफर टू एंड वुड चार्ली गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल एंड बाय 2 tickets for him and his wife to Galesburg? Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie, and why? What do you infer from Sam's letter to Charlie? The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Do you see an intersection of time and space in the story? Apparent illogicality sometimes turns out to be futuristic projection. Discuss philately helps keep the past alive and discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past and the present and the future? So these are few textbook questions whose answers you will be able to, these answers you will be able to find after the chapter reading. So the third level by Jack Finney.
हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, और आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपनी रियल लाइफ में फ़ेस किया है जो कि लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है बिलीव करना? द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford Railford roads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. ये मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट पहले ही दे दिया है कि चार्ली जो है अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा है और वो बात कर रहा है कि there are three levels in like at Grand Central Station, but actually में वहाँ पर reality में दो ही levels. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. और ये waking dream wish fulfillment है. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and I just want to escape. वेल हु डजंट। और वो कहता है कि सैम जो साइकेट्रिस्ट है उसकी वाइफ को पहले बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके की क्यों ये बातें कर रहा है, तो बट सैम ने उसकी वाइफ को कन्विंस किया कि ये सब चीज़ें वो इसलिए नहीं उसके साथ हो रही है क्योंकि वो शादी से नाखुश है, जब वो लुइसा के साथ ही जाना चाह रहा है एक अनदर एस्केप प्लान पे, बट वो ज़्यादा परेशान है मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से। Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station. और वो कह रहा है कि सब कोई जो है इस तरीके का escape चाहते हैं, बट इसकी तरह कोई Grand Central Station के third level पे नहीं पहुंच जाता जो कि exist ही नहीं करता. So the theme is escapism and time travel, but that's the reason, he said. My friends all agreed, everything points to it, and they claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. अगर हम स्टैम्प कलेक्शन की बात करें, और हम सब में कुछ ना कुछ हैबिट होती है कुछ कलेक्शन की, अपनी लाइफ को जो है रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक देने की, और उसकी स्टैम्प कलेक्शन में थी, और वो टेम्प्रेरी रिफ्यूज था, एक वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। जैसे कईयों को बुक्स का शौक़ होता है, वो बुक्स की कलेक्शन करते हैं, म्यूज़िक का शौक़ होता है तो म्यूज़िक एल्बम मेंटेन करते हैं, कईयों को कॉइन्स का कलेक्शन का शौक़ होता है तो वो कॉइन्स अलग अलग कंट्रीज़ के और अलग अलग टाइम एरा के जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं। तो हर कोई अपने एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज चाहता है अपनी रियलिटी से, और उसका ये स्टैम्प कलेक्शन एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear. And he started my collection. वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में तो इस तरीके की किसी रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तब तो लाइफ बहुत ही पीसफुल थी, प्रिटी थी, और वहीं से ही मुझे आदत डेवलप हुई कलेक्शन किया। एंड इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब वो बात कर रहा है कि फर्स्ट डे कवर की कलेक्शन की बात करें या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात करें, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। एनीवे, here's what happened at the Grand Central Station one night. Last summer I worked late at the office and I was in a hurry to get up to uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than the bus. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर पहुंचने की बहुत जल्दी में था, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उसने ट्रेन लिया क्योंकि अपनी वाइफ के पास बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था। तो आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स, और चार्ली 31 ईयर्स का, और उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन gabardine suit and a straw hat with a fancy band, and I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. और वो जल्दी से बस अपने घर पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ के पास, और उसने उस दिन गैबरडाइन सूट और स्ट्रॉ हैट पहना था, फैंसी बैंड पहना था, और बहुत सारे लोगों को वो पास करके जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू अ ग्रैंड सेंट्रल from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where
you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from ducked into an arcade doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of the Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doors and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और अक्सर जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता था, पहले लेवल पे गया जहाँ से आप 20th सेंचुरी की ट्रेन लेते हो, फिर सेकेंड लेवल पे गया जहाँ पे डिफरेंट डोरवेज हैं हेडिंग सब टूवर्ड्स द सबवे, और हमेशा वो कोई ना कोई न्यू डोरवेज और स्टेज और कॉरिडोर्स में वो बम्प करता रहता था. कभी वो लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल पे निकलता, तो कभी वो 46 स्ट्रीट 3 blocks अवे निकलता. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. और उसे लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो दिन पर दिन कभी बढ़ता चला जा रहा है, कभी नए नए कॉरिडोर्स और रूट्स उसको मिलते रहते हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years the Grand Central Station has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. और उसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ज़्यादातर लोग जो है एस्केप करने के लिए यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसने भी वही किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को. बट ये चीज़ उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back in the second level. But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood, old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering, and then I saw why. They were open flame gas lights. अब वो उस लेवल पे पहुंच गया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वहाँ पर जब वो चल रहा था तो उसको अपने ही पाँव की आहट सुनाई दे रही थी. और एक मिनट के लिए उसे लगा कि वो सेकेंड लेवल पर ही है, बट उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो तो थर्ड लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पर जो है रूम्स छोटे थे, टिकट विंडो जो है वो कम थी. अगर हम इंफॉर्मेशन बूथ की बात करें तो वो वुड का बना हुआ था. जो डिम लाइट थी वो फ्लिकरिंग थी, ओपन फ्लेम गैस फ्लैश लाइट्स की थी. तो उसे ये रियलाइज़ हो गया कि ये तो सेकेंड लेवल है ही नहीं, ये डेफिनेटली थर्ड लेवल है. देयर वर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. ब्रास पिटॉन्स थे, उस ज़माने में जो है वो यूज़ होते थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम द वेस्ट पॉकेट, और वेस्ट पॉकेट वाली वॉचेस जो है लोगों ने रखी हुई थी और वो देख सक रहा था कि टाइम लोग उसी से ही देख रहे थे. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and frowned, and he wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. और अलग अलग तरीके की मुस्टैच थी, कपड़े जो है वो ओल्ड फैशन थे. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 80-90 something, और वो पुराने ज़माने के कपड़े 80-90 के कपड़े जो है लोगों ने पहने हुए थे. Never saw so many बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैशेस. अगर हम लोगों की मूछों की बात करें, दाढ़ी की बात करें और साइड बर्न्स की बात करें तो उसने कभी भी इस तरीके की लुक्स नहीं देखी थी अपनी सेंचुरी के लोगों में. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट एंड शी वोर अ ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन, sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back
of her out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and IBS locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. और उसने देखा कि पुराने ज़माने की लोकोमोटिव है, उस लेडी ने भी ड्रेस जो किया है वो उसके ज़माने का नहीं है। फिर अपने आप को यकीन दिलाने के लिए वो आगे बढ़ा और उसने न्यूज़पेपर शॉप पे गया। टू मेक श्योर आई वॉकड over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet, and it was the world. The world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that could take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब वो एक न्यूज़पेपर बॉय जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो उसने देखा कि वो न्यूज़पेपर उससे बाय किया, उठाया, उसने न्यूज़पेपर देखा तो उस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली टाइम्स है या हिंदुस्तान टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो ये हमारे आजकल के ज़माने के जो पेपर्स हैं। लेकिन अगर हम पुराने पेपर्स की बात करेंगे तो हमें भी सरप्राइजिंग होगा कि अरे ये तो न्यूज़पेपर अब पब्लिश ही नहीं होता और ये तो न्यूज़पेपर है। और ऐसा ही चार्ली के साथ हुआ जब उसने द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा, जो कि अभी सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था। और उस पर अगर हम डेट देखें तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का कोई न्यूज़ छपा हुआ था और जून 11, 1894 था डेट। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, और फिर वो टिकट विंडो की तरफ गया और उसे लगा कि यहाँ से जो है उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट्स डेफिनेटली मिल जाएंगी। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन, still trees whose branches meet overhead and roof the streets, and in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around. A peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. अब वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि गेल्सबर्ग की जो लाइफ है बहुत ही सिंपल थी, पीसफुल थी। लोग वहाँ पे बैठकर लॉन में घंटों बातें करते थे, इवनिंग्स में सिगार्स पीते थे। कुछ वुमेन जो है वो पाम लीव से फ़ैन जो है बनाकर उसे अपनी हवा लेती थी। ऐसे ही फायर फ्लाइज थे और पीसफुल वर्ल्ड था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 ईयर्स के बाद की बात है और वर्ल्ड वॉर 2 से 40 ईयर्स इन द फ्यूचर की बात कर रहा है। वो उस टाइम का जो है गेल्सबर्ग जो एग्जिस्ट करता था। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, सो ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग। और इसके लिए जो है वो क्लर्क के पास गया। द क्लर्क फिगर द फेयर एंड ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ of for the 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. अब उसने अपनी जेब में जो पैसे देखे तो उसके पास पैसे थे कि वो आराम से 2 टिकट्स खरीद सकता था, बट जो वो पैसे उसने टिकट काउंटर पे जब प्रेजेंट किए तो वो टिकट विंडो पे जो बैठा था वो उसे घूर कर देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने पैसे की तरफ देखा। पैसे को वो बिल्स भी बोलते थे। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। वो कहता है कि ये पैसे नहीं है, तो मुझे बुद्धू बना रहे हो, और अगर तुम मुझे बुद्धू बनाना चाह रहे हो तो ये तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। और ये बात सुनकर जो है चार्ली बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि जेल में वो नहीं जाना चाहता था। और किसी को बिट्रे करना या रॉन्ग पैसे प्रेजेंट करना से जो है वो जेल हो जाती है। और बाहर की कंट्रीज़ में लॉज रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने जब देखा कैश ड्रॉर जो कि उसको आराम से दिख रहा था कि वो पैसे जो उसके हाथ में हैं और जो पैसे उस ड्रॉर में हैं वो टोटली डिफरेंट है। ऑफ कोर्स द मनी वी यूज़ नाउ डेज, एंड दोज वर ओल्ड स्टाइल बिल्स।
half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. और वो कहता है कि 1894 में भी जेल जो है वो उतनी बुरी है, जेल में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. और वो वहाँ से and that was that, and I left the same way I came up, I suppose. And next day during the lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That reality worried my psychiatrist friend, and you can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. और अगर उसकी बात करें, जब वो डर गया कि अरे ये तो मुझे जेल ही भिजवाएगा, तो फटाफट से वापस अपने घर की तरफ निकल लिया. और अगले दिन वो बैंक गया. बैंक में उसने मनी एक्सचेंज किया, और जो मनी उसने एक्सचेंज किया अपने बैंक से, उसने $300 ओल्ड स्टाइल करेंसी के लिए निकाले, और उसको उसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसने $300 निकाले तो उसको रिटर्न में $200 के करीब ही मिल पाए. और तब भी वो खुश था, क्योंकि उसको मालूम था कि 1894 में जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं है. अगर हम एग्स की बात करें तो 13 सेंट्स अ डज़न है, तो जो कि काफ़ी सस्ता है, और उसके लिए ये $200 भी सफिशेंट इनफ होंगे गेल्सबर्ग में उन दोनों को सर्वाइव करने के लिए. बट आई हैव नेवर अगैन found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station. Though I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this, and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there. और जब वो दोबारा उस टिकट विंडो पे जाने की कोशिश कर रहा था, उस थर्ड लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा था वो पैसे लेकर, तो उसको वो थर्ड लेवल कभी नहीं मिला. और उसकी वाइफ ने भी उसे मना कर दिया कि अब तुम मत ढूंढो थर्ड लेवल. बट जब उन्होंने वो स्टैम्प्स देखी, तो उससे स्टैम्प से उन्हें रियलाइज़ हो गया कि नहीं, डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड लेवल. माई फ्रेंड Sam Vineyard disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected, because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right in 1894. और अगर वो बात करें तो उसका सैम जो फ्रेंड है वो सडनली डिसअपियर हो गया था, और सैम से अक्सर गेल्सबर्ग की बातें चार्ली करता था और उसके बारे में उसे बताता था. तो उसको ये रियलाइज़ हो गया, ये यकीन हो गया कि सैम अगर डिसअपियर हुआ है तो वो 1894 में ही गेल्सबर्ग में पहुंच गया है. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. और जोन से दिन पहला डे वो स्टैम्प लॉन्च होता है, तो उसको पर स्टैम्प लगाकर और डेट और ईयर लगाकर वो पोस्ट मार्क के साथ जो है वो अपने आप को जो है मेल कर लिया जाता है अपने घर में और अपने एड्रेस पे. उस एक एनवलप में ब्लैंक एड्रेस, ब्लैंक जो है एनवलप, सिर्फ घर का एड्रेस, डेट और वो स्टैम्प होगी, तो वो फर्स्ट डे कवर उसको बोला जाता है. न्यू स्टैम्प जब भी इशू होती है तो वो फर्स्ट डे कवर जो है चार्ली को मिला अपनी उस स्टैम्प्स में. दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. वो कभी भी खोली नहीं जाती, उसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर ही होता है. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since जुलाई 1894. और कहता है कि वो स्टैम्प जो है वो उसको वहाँ मिला गेल्सबर्ग में. उसके ग्रैंडफादर को किसी ने पोस्ट किया था उस एड्रेस पे जिसमें डेट थी जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शो दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टैम्प वॉज 6 cents
डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और वो स्टैम्प 6 सेंट की थी, डल ब्राउन थी और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर था. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर. और जब ग्रैंड फादर के पास ये आया होगा लेटर तो वो सीधा उसके उनके कलेक्शन स्टैम्प कलेक्शन में चला गया. स्टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जो कि वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है जो फर्स्ट डे कवर होता है वो एम्प्टी होता है, लेकिन उसने वो वाला खोला. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, और उसके अंदर वो पेपर ब्लैंक नहीं था. उसमें एड्रेस था, गेल्सबर्ग का एड्रेस था, डेट थी और चार्ली. आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level. I've been there, I've been here 2 weeks, and right now down the street at the dailies someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nellie home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa, keep looking till you फाइंड द थर्ड लेवल एंड इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. और उसके अंदर जो लेटर था वो लेटर में गेल्सबर्ग की अच्छाई कर रहा था कि वहाँ पे बहुत ही पीसफुल है और वहाँ पे लोग जो है स्ट्रीट पे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, मुझे किसी ने लेमनेड के लिए भी बुलाया है. और उन दोनों को वो आने के लिए बोलता है और उन्हें कहता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और तुम थर्ड लेवल ढूंढते रहो. द नोट इज़ साइंड बाय Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out that the Sam bought $800. अब जब वो स्टैम्प और कॉइन के स्टोर पे गया तो उसे पता लगा कि सैम ने वहाँ पे $800 worth of old style currency buy किया है. That ought to be set him up in the nice little hay feed and grain business. और ये उसके लिए sufficient था एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, फीड एंड ग्रेन का, हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस शुरू करने के लिए. ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, क्योंकि वो हमेशा एक फार्मर की तरह इस तरीके का कुछ बिजनेस करना चाहता था. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने ओल्ड बिजनेस की तरफ जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वो आजकल की जनरेशन को है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत उस ज़माने के लोगों को नहीं होती थी. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस. Why Sam was my psychiatrist. और इसके साथ जो है ये स्टोरी जो है यहीं पर ही एंड होती है. और आपकी जो स्टोरी है वो आपके साथ एक मिस्ट्री छोड़ जाती है कि कितनी सच्चाई है कि सैम जो वो दूसरे लेवल पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, गेल्सबर्ग पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, या कितना इस एस्केपिज्म में रियलिटी है. और these are some quick notes which you can go through to give you the clear picture of the chapter, and these are the less common words, meanings, some question answers which you can read and understand. And if you're not able to understand, then definitely I am there to explain it to you, although we'll be discussing it in our classes more often. So these are the question answers which you can go through, and these question answers you can note down in your notebooks. These are very simple questions, gives you more clear picture and overview of the chapter, the third level. And these are the extracts which you can note down in your notebook, only the answers in your notebooks, that will help you. This is the road map. You can clearly see the road map, in which like the theme is there, then Charlie the narrator, then Sam Binier, minor characters, and Gailbergs in 1894. So with this we come to the end of the chapter, the third level, and God bless.